కూడా బాగా ఉండదు అనే విషయాన్ని పొద్దుపోయే వరకైనా పర్వాలేదు ఈరోజు క్యాబినెట్ సమయానికే మొత్తం దేశ సమాచారం అంతా సేకరించి ఇతర రాష్ట్రాలు తీసుకున్నటువంటి స్టెప్స్ ఏంటో కూడా సమీకరించి వాటిని సమీక్షించి नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। दुनिया के बहुत सारे ममालिक अरसे दराज से इंसानियत के साथ ऐसा सलूक रवा रखे हुए थे कि अचानक एक आसमानी बला दुनिया पर एक वबाल की तरह आन पड़ी और सारी दुनिया को दहला कर रख दिया। जी हाँ, हमारी मुराद खतरनाक बीमारी कोरोना वायरस से है जिसकी दवा अभी तक ईजाद नहीं हुई है। सारी दुनिया के साथ साथ इसकी दहशत हमारे मुल्क भारत में भी अब फैल गई है और तो और इस सिलसिले में शहर हैदराबाद के कई दवाखानों में भी इसके मुश्तबा मरीज ज़ेर इलाज भी आ गए हैं। लिहाजा आज तेलंगाना हुकूमत के CMO ने एक आला सतही मीटिंग के बाद 31 मार्च तक सारी यहाँ की मशहूर जगहों को बंद कर देने के अहकामात जारी कर दिए हैं, जिसमें सारी जगहों के सारे स्कूल्स व कॉलेजेस, सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, सभी तालीमी इदाराजात कल से बंद कर दिए जाएं। लेकिन इम्तिहानात को हस्बे रूम अमल जल्द से जल्द साफ सफाई के साथ मुकम्मल कर देने की ताकीद भी की गई है। साथ ही रियासत में शादियों की महफिलों को भी छोटे से छोटे वक्फे में पूरी कर लेने की हिदायत भी दी गई है। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాల ఎటువంటి ఉత్పాత పరిస్థితి వచ్చినా ఎదుర్కోవడానికి సంసిద్ధంగా ఉంది కాబట్టి మన ప్రజలను మన పిల్లలను మన యొక్క అమాయక ప్రజానీకాన్ని కాపాడుకోవడానికి తప్పకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు పొరుగు రాష్ట్రాలు ఏ విధంగా తీసుకుంటా ఉన్నాయో మనం ఆ విధంగా తీసుకునే బాధ్యత మన మీద ఉంటుంది కాబట్టి దాని దృష్ట్యా అనవసరంగా మనం రిస్క్ తీసుకోలేం కాబట్టి రిస్క్ తీసుకోకూడదు కాబట్టి ఏమేం తీసుకోవాలి ఏ చర్యలు తీసుకుంటే సబబుగా ఉంటుంది ఏ చర్యలు తీసుకోవడం బాగా ఉండదు అనే విషయాన్ని పొద్దుపోయే వరకైనా పర్వాలేదు ఈరోజు క్యాబినెట్ సమయానికే మొత్తం దేశ సమాచారం అంతా సేకరించి ఇతర రాష్ట్రాలు తీసుకున్నటువంటి స్టెప్స్ ఏంటో కూడా సమీకరించి వాటిని సమీక్షించి క్యాబినెట్ నిర్ణయంగా ఈరోజు విషయాన్ని వెలువరిస్తాం। దానికి ముందు నేను కూడా తమరితోని అనుమతి తీసుకుంటాను అధ్యక్ష, ఆ ప్రకారం ముందుకు పోతాం। దయచేసి తమరు కూడా పార్టీకి ఒకరికి చొప్పున అవకాశం ఇవ్వండి। దీనిలో ఎక్కువ పెద్ద నేను ఇంత డీటెయిల్ చెప్పిన తర్వాత పెద్ద చర్చ కూడా ఉంటుందని నేను అనుకుంటలేను। ఆల్ స్టెప్స్ విల్ బి టేకెన్। మళ్ళా ఒకసారి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా, ఇంతకుముందు ఒక వ్యక్తి బయట నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి మన రాష్ట్రం వ్యక్తి కాదు, అతనికి పాజిటివ్ రిపోర్ట్ వస్తే ట్రీట్మెంట్ చేసి పంపించినాం, లక్కీలీ అతను సర్వైవ్ అయినాడు, పంపించినాం। ఈరోజు కూడా ఈ కరోనా బారిన పడ్డ వ్యక్తులు అవుతున్నారో ఈ వైరస్ సోకిన వ్యక్తి ఇటలీ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి, వారిని వెంటనే తీసుకున్నాం, ముందు దగ్గర చేరగా గాంధీ హాస్పిటల్లోనే ఉంచినాం, చర్య తీసుకున్నాం। మిగతా ఇద్దరి మీద ఎవరైతే అనుమానిత వ్యక్తులున్నారో వాళ్ళది పుణేకి పంపించడం జరిగింది। ఆ రిపోర్ట్ ఫైనల్ రిపోర్ట్ వస్తే మనకు కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కాబట్టి గాబరా పడవలసిందో భయపడవలసిందో పెద్ద ప్యానిక్ కావాల్సిన సిచ్యువేషన్ లేదు ఇక్కడ కాబట్టి అన్ని చర్యలు తీసుకుందాం। ముందు జాగ్రత్తగా మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని మంచిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందు జాగ్రత్తగా ఏ మేరకు చర్యలు తీసుకోవాలో ఆ మేరకు చర్యలు ప్రభుత్వం పకడ్బందీగా తీసుకుంటుంది। అవసరమైన వైద్య సిబ్బంది మనకు రెడీగా ఉన్నారు, మన డిపార్ట్మెంట్ అప్రమత్తంగా ఉన్నది, మన హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చాలా వైబ్రాంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది మనకు కాబట్టి ఏ విధమైనటువంటి వర్రీ కానీ భయం కానీ ప్రజలకు అవసరం లేదు, కన్ఫ్యూజన్ కూడా అవసరం లేదు। ఆ ప్రకారంగా ముందుకు పోతామని తెలియజేస్తూ తమకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష। డిస్కషన్ ఆన్ కరోనా వైరస్, షార్ట్ డిస్కషన్। దయచేసి గౌరవ సభ్యులు తమ అమూల్యమైన సూచనలు 2-3 నిమిషాలు ఇచ్చినట్టయితే దానిపైన మనం ముందుకెళ్ళవచ్చు। शहर हैदराबाद के महकमे पुलिस ने हालिया दिनों में एक ऑडियो क्लिप के जरिए शहर में फसाद की पेशकशी करने वाले एक शख्स को ढूंढकर हिरासत में ले तो लिया था, लेकिन अभी शहर का माहौल मुकद्दर बनाने की कोशिशें जोर शोर पर आ गई हैं। वैसे आज इत्तला मिली है कि शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर शिवरामपल्ली इलाके में वाक़े कचरे के ढेर में किसी वजह से आग लगने पर एक ऐसा धमाका हुआ कि आसपास वाली इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस फौरन वहां पहुंची और बाद तहकीकात के बतलाया कि किसी ने कचरे में कुछ धमाकू अशिया फेंक दी थी, लिहाजा आग लगते ही वो फट पड़ी। फिर भी बम के इम्कानात को भी खातिर में रखा गया है। वैसे इस हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं दी गई है।
ఈరోజు ఉదయం 8:40 ప్రాంతంలో వడ్రాబస్తీ శ్రీరాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర రోడ్డు పక్కనటువంటి చెత్త కుప్పలో దానికి నిప్పు పెట్టిన ఈ కాలనీవాసులు నిప్పు పెట్టడం జరిగింది. ఆ చెత్త కాలిపోయే క్రమంలో ఒక్కసారి పెద్ద చప్పుడు రావడం జరిగింది. దానికి కొంచెం కంపించినట్టు అయింది. దానికోసం ఎందుకోసం వచ్చిందన్న విషయంలో ఈ క్లూస్ టీమ్ను పిలిపించడం జరుగుతుంది. క్లూస్ టీమ్ను పిలిపించేసి వాటి ఎందుకోసం సౌండ్ వచ్చిన విషయాన్ని నిర్ధారించుకోవడం జరుగుతుంది. शहर हैदराबाद के मौला अली रेलवे स्टेशन पर आज सुबह मरम्मत के लिए लाई गई एक खाली रेलगाड़ी के एक डब्बे में अचानक आग भड़क उठी और वहां पर दहशत फैला दी। ओहदेदारों ने फौरन नाचारम व तारनाका के 3 फायर फाइटर्स को तलब कर लिया, जिन्होंने बड़ी उजलत में वहां पहुंचकर आग पर काबू पाते हुए उसे फैलने से रोक दिया। इस सिलसिले में किसी भी हलाकत की इत्तला नहीं दी गई है, फिर भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हैदराबाद के पुराने शहर रियासत नगर इलाके में वाक़ ओवैसी हॉस्पिटल के रूबरू वाली बड़ी सी सड़क पर अरसे दराज से बल्दिया की तामीरात के चलते वहां पर बेरारवी से छोड़े गए एक बड़े से गड्ढे में कल रात एक 2 व्हीलर सवार के राकेश नामी कोरियर बॉय साकिन सुल्तान शाही हादसे का शिकार बनकर शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही संतोष नगर पुलिस फौरन वहां पहुंची और उसे अवैसी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और तहकीकात के नाम पर कुछ शुरू किया है। लेकिन शायद शहर में अरसे दराज से बल्दिया के काम ऐसे ही रहे हैं। वैसे भी हमारे मुल्क भारत की हालत आज उस दहाने पर आ खड़ी हुई है जहां पर किसी से किसी को कोई सरोकार ही नहीं है, चाहे वो जिए या मरे, है ना। जैसा कि सारा माहौल जानता है कि अरसे दराज से भारत का माहौल फिरका वाराना फसादात के लिए तैयार किया जाता रहा और नतीजतन दिल्ली के हालिया फसादात रोनुमा हो गए। लेकिन मरकज़ में वही बीजेपी गवर्नमेंट है जिसकी मौजूदगी में गुजरात के तारीखी गोदरा फसादात हुए थे, लिहाजा एक तरह से तहकीकात पर सवालिया निशान ज़रूर आ गया है। इसके बाद अब एक पुरअसरार ऑडियो क्लिप में दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में फसादात की पेशनगोई हो गई, जहां का माहौल पहले ही से मुकद्दर बना हुआ था। और आज इस सिलसिले की एक कड़ी ऐसे सामने आई कि मादनापेट इलाके के एक मंदिर के पास किसी ने गैस के तेल से भरी कुछ बॉटल्स को रख दिया, जिसकी वजह से इलाके में कशीदगी फैल गई। मंदिर के पुजारी ने इंतजामिया कमेटी को इसकी इत्तला दी, जिस पर मुकामी पुलिस ने फौरन वहां पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाज़ेह रहे कि अगर किसी ने दुश्मनी से यह हरकत की होती तो बॉटल्स बम की तरह फोड़ दिए जा सकते थे, लेकिन ऐसे हादसे से वहां पर बीजेपी के एमएलए के मुंतखब होने के अब इम्कानात रोशन हो गए हैं। तेलंगाना असेंबली के इजलास के चलते आज सेशन में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा के एमएलए मोहम्मद मौजम खान ने शहर के तारीखी तालाबों के सिलसिले में अपनी आवाज़ उठाई कि अरसे दराज से यहाँ पर वाक़े मशहूर ज़माना उस्मान सागर यानी गंडीपेट और हिमायत सागर की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई है, जबकि ये तालाब तारीखी अहमियत के हामिल सालों से आवाम की प्यास बुझाते आ रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि इन 2 तालाबों पर चेक डैम्स तामीर किए जाएं। इस मुतालबे पर वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो हुकूमत की तवज्जो ज़रूर इस जानिब लाएंगे। आपके ज़रिए मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, 2014 से पहले इंचार्ज मिनिस्टर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में जब थे, उनके सदारत में जब हरीश राव साहब भी थे, ईटेला राजेंद्र भी थे और पूरे सिटी के एमएलएस थे, हम उस्मान सागर और हिमायत सागर का एमडी वाटर वर्क्स के ज़रिए तफसीली दौरा कर चेक डैम्स को चेक करने के लिए गए थे। जब हम देखे थे सर पूरे एमएलएस मिलकर आधा फीट 1-1 फीट के चेक डैम्स उस्मान सागर और हिमायत सागर के लिमिट्स में बनाए गए थे और कई जगह कैचमेंट एरिया को इंक्रोचमेंट किया गया था। मेजर इंक्रोचमेंट शमशाबाद एयरपोर्ट की तरफ हुआ था सर, उसके सराउंड फिरते हुए पूरा होते हुए हिमायत सागर के सराउंड होते हुए उस्मान सागर से होते हुए हम लोग इधर गंडीपेट की तरफ से आए थे। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ, तेलंगाना फॉर्मेशन हुए बाद हिमायत सागर और उस्मान सागर के आसपास के चेक डैम्स को चेक किया गया है? क्या वो चेक डैम्स कायम हैं? क्या चेक डैम्स महफूज है? और ख़ास तौर से आज आप देख सकते हैं अभी धुपकाला चालू नहीं हुआ सर, हिमायत सागर और उस्मान सागर की किस तरीके से हालत है। और आपके ज़रिए मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, एक आप कमेटी और सिटी के एमएलएस को लेकर
उस्मान सागर और हिमायत सागर के सराउंडिंग एरिया के चेक डैम का एक इंस्पेक्शन रखिए आप। शुक्रिया सर। बालराज गाరు ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके के मजलिसी एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने आज असेंबली की कार्रवाइयों के दौरान टीआरएस हुकूमत की आसरा पेंशन स्कीम की तारीफों के पुल बांध दिए कि इस स्कीम के ज़रिए ये हुकूमत रियासत के बहुत सारे बड़े बूढ़े ज़ईफ़ों की बड़ी दुआएं ले रही है और इसकी लालच में आकर आज कई घराने लड़ाई झगड़ों से भी बच गए हैं और बहुएं और नौजवान लड़कियां अपने सास ससुरों की बड़ी खिदमत कर रही हैं। साथ ही साथ इन्होंने हुकूमत को ये याद भी दिलाया कि इस स्कीम के तहत कई और दरख्वास्तें भी दाखिल की गई हैं। अगर सभी को फ़ौरन मंजूर कर दिया जाए तो टीआरएस हुकूमत बहुत सारी और दुआओं में आ जाएगी। जाफर साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब आपका। आज का जो सवाल है वो आसरा पेंशन का सवाल है सर। ये बहुत अच्छी स्कीम है सर। पहले हुकूमत तेलंगाना ने 1000 रुपीज़ रखा था सर ओल्ड एज के लिए और डिसेबल्ड के लिए 1500। अभी उसको एनहांस करके 2016 ओल्ड एज के लिए किया है और विडो के लिए किया है सर और 3016 डिसेबल के लिए क्या रहा है। हैदराबाद के अंदर सर टोटल 1,08,204 टोटल लोगों को दे रहे हैं सर पेंशन, जिसमें ओल्ड एज के लिए 34,218 है सर, विडो के लिए 55,231 एंड डिसेबल के लिए 18,755 सर। ये तो पेंशन आ रहा सर, मगर पिछले एक साल से कई लोग एप्लीकेशन डाल के रखे सर, उसका अभी तक कोई पेंशन का कुछ नहीं हुआ सर। और एक चीज़ सर, मैं मुबारकबादी देता हूं हुकूमत को जिन्होंने 57 ईयर्स पेंशन की एज लिमिट करे सर। मैं मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूं, ये एप्लीकेशन आप कब से लेना चाहते हैं सर? कब से ये 57 साल के 57 ईयर्स के लोगों को पेंशन देंगे सर? और एक सर एक अहम बात यह है कि सर जो डिसेबल है, जो बाय बर्थ डिसेबल रहता, उसके लिए आप पेंशन दे रहे हैं सर। कुछ लोग पैरालिसिस होके सर तकरीबन चल नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए भी अगर आप पेंशन कंसीडर करें तो बड़ा अच्छा रहेगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये वक्त देने का। राजा सिंह। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन में आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद आला व एमएलए याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रियासत के बहुत सारे मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई और ख़ास तौर पर बतलाया कि इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत की शी टीम्स अपना किरदार बेहतर तौर पर निभा रही है, फिर भी ख़ास तौर पर ख़वातीन और लड़कियों में खुद एतमादी बहाल नहीं हो पा रही है। इन्होंने तारीखी बात भी एक दोहराई कि किसी भी रियासत की ख़वातीन को मजबूत बनाने से वहाँ का माशरा खुद ब खुद मजबूत बन जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई आदमी अपने घर से खुश रहेगा तो बेहतर तौर पर बाहर अपना किरदार भी निभा पाएगा। के गैर इत्मीनान बख्श मारी सूरत हाल पर तफसीली बयान दिया। रियासती वज़ीर ख़जाना ने अगले साल के बजट में महकमे जात की इक़्तिसादी में इजाफ़ा किया, जबकि दीगर महकमे जात के मुख्तस रकम गैर ज़रूरी सरगर्मियों को कम कर दिया। जनाब हरीश राव ने इस बात की भी निशानदेही की कि रवा साल रियासत के लिए टैक्स महसूलात नॉन टैक्स महसूलात की शरह तरक्की में कमी वाक़ हुई है और इस तरह मरकज़ी टैक्स और मरकज़ी ग्रांट से भी रियासत को साल रवा साथ साथ अगले साल भी इसमें आमदनी में कमी हुई है। मैं वज़ीर ख़जाना की सिताइश करता हूँ कि माशी बदहाली की ऐसी सूरत हाल के बावजूद रियासती बजट ज़राअत और इसके वाबस्ता शोबों के लिए ज़्यादा रकम मुख्तस की गई है। रेतू बंधु स्कीम के तहत दी जाने वाली माली इमदाद को 2020 और 21 में बढ़ाकर 14,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, जबकि किसानों की तरक्की को फी एकड़ दी जाने वाली मकदार को बढ़ाकर 10,000 रुपये सालाना कर दिया गया। ज़राअत के मुतालबात ज़र के ऋतु बंधु, ऋतु बीमा, ज़रई खर्चात की माफ़ी दीगर स्कीमों के लिए 2020 और 21 के बजट में मुख्तस रकम को बढ़ाकर 18,465 करोड़ रुपये कर दिया गया।
जो कि एक ऑल इंडिया एक रिकॉर्डेड इजाफा है। तवानाई के मुतालबे ज़र के शोबे ज़राअत के मुफ्त बिजली की फराहमी की सब्सिडी में रियासती बजट ने 7,547 करोड़ रुपए मुख्तस किए। बेहतर इंतजामात के नया रेवेन्यू कानून इज़्ज़त माफ़ वज़ीर आला जनाब चंद्रशेखर राव साहब ने ऐलान किया कि इंतज़ामिया को अवाम के करीब लाने, शफाफ और बदउनवानी से पाक हुकूमत को यकीनी बनाने के लिए रियासत में एक नया रेवेन्यू कानून नाफिज किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से अजला की तश्कील के बाद रियासत में अजला की तादाद में 33 बढ़ाकर 33 कर दी गई। इस तरह रेवेन्यू डिवीज़न और मंडलों को भी तश्कील दी गई। 9 तश्कील शुदा अजला में ज़िले कलेक्टर मंडल दफातर आरजी मुकामात पर अपना काम चला रहे हैं। इससे मरबूत कॉम्प्लेक्स ज़ेर तामीर है। मेरी गुजारिश है कि तमाम कलेक्ट्रेट और मंडल के दफातर को मुनासिब अमला फराहम किया जाए। जुमे के दिन असम्बली में पहले प्रगति प्रोग्राम में बात करते हुए इज़्ज़त माफ़ वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के तमाम गाँवों के लिए शमशार घाटों के साथ साथ हरीता हारन प्रोग्राम के तहत पौधों की शजरकारी के लिए नर्सरी मुहैया की जाएगी, जिसके लिए अब महकमे रेवेन्यू को इन मौजूदा कब्रस्तानों और नर्सरी के लिए ज़मीनों की निशानदेही करते हुए मुख्तस करना होगा। मैं इज़्ज़त माफ़ वज़ीर आला से दरख्वास्त करता हूँ कि महकमे रेवेन्यू की हिदायत देके बड़ी तादाद में ग्राम पंचायतों के साथ साथ म्यूनिसपालिटी नए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में और मुस्लिम अक़लियतों को कब्रस्तानों के लिए कम अज़ कम 5 एकड़ अराज़ी मुख्तस करें, क्योंकि मौजूदा कब्रस्तान या तो नाकाफ़ी या फिर कब्जा कर लिए गए, जिसके बायस नाकाफ़ी जगह की वजह से मुकामी मुसलमानों को तदफीन के लिए मुश्किलात का सामना है। फ़िलहाल कमर्शियल टैक्स में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह के लिए वैट में रियासत में इजाफा किया गया और इसलिए हुकूमत को इन नक़ाइश की आमदनी के लिए वैट की शरह में मज़ीद इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं है। शराब की दुकानों के परमिट का खात्मा ज़रूरी है। अगरचे कि हुकूमत का कहना है कि रियासती एक्साइज के लिए इजाफे में कमी आ रही है, लेकिन रियासती दारुल हुकूमत शराब के फ़रोख्त में इजाफा बरकरार रखी है। शराब की दुकानों का कारोबार ज़ोर और शोर से चल रहा है। शराब की दुकानों के मुंसलिक नाम नहाद परमिट रूम्स में लोगों की भीड़ नज़र आती है। बहुत सारे इलाकों में परमिट्स रूम के मकीनों को परेशानी का लायक होना पड़ता है। इस मसले में हम बार बार आवाज़ उठाते गए कि इसकी रोकथाम महकमे आबकारी के लिए बेहद ज़रूरी है। एक्साइज की जानिब से जो वाइन शॉप का परमिट दिया जा रहा है, उस परमिट के जो कवायद थे, उस कवायद को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अदालत, तालीमी इदारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये मजहबी मुकामात और दवाखानों के करीब वाइन शॉप की मंजूरी नहीं दी जा सकती है। एक्साइज का एक रूल्स था, लेकिन आज कई सालों से इन रूल्स को की परवाह किए बगैर ऐसे इजाज़त दी जा रही, जिसमें आवाम को काफ़ी मुश्किलात है। बहुत सारे इलाकों में, रिहायशी इलाकों में वाइन शॉप कायम किए गए, जिससे शहर के पुरअमन इलाकों को बदअमनी का सामना करना पड़ा है। हालात के ख़राब होने का खदशा है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि जो परमिट दिए जा रहे हैं उसका ख़ास तौर पर ख्याल रख के दिए जाए और जितने दिए गए हैं परमिट उसको मनसूख किया जाए, ताकि हमारे शहर में अमन बरकरार रहे। महकमे दाखिला में ऐसे चंद महकमे हैं जिसके रियासती बजट में बराए साल 2020-21 के इख्तिसासी में इजाफा किया गया। महकमे दाखिला के तख़मीनाजात में इजाफा करते हुए 2019 और 20 में 4,957 करोड़ के और 2020 और 21 में 5,809 करोड़ रुपये रखा, 5,809 करोड़ रखा गया। 8 से 52 करोड़ यानी 17% का इजाफा जाहिर होता है। जोड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद बशमूल रियासत भर में लैंड ऑर्डर की मजमूई सूरत हाल बड़ी हद तक पुरअमन रही, जबकि ख़वातीन के जराइम और अवामी मुकामात पर ख़तर की वारदातों में साइबर जराइम के वाक़ात में गुज़श्ता के मुकाबले में इस साल इजाफा देखा गया। जराइम के आदाद व शुमार को आम के सामने नहीं लाया गया, जिसकी वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुक़न्नना
जनाब अकबरुद्दीन अवची साहब ने 2019 में पेश आए जराम के आदाद व शुमार की तफसीलात हासिल करने की खातिर महकमे दाखिला के DGP दफ्तर में RTI के दरख्वास्त दाखिल करना पड़ा। RTI दरख्वास्त के जवाब में महकमे पुलिस की जानिब से फराहम करदा जराइम की आदाद व शुमार पर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है रियासत में जराइम के बायस सूरत हाल ठीक नहीं है। रियासत भर में 2018 के दौरान जो जराइम हुए 1,10,864 जराइम की ताबाक़यात पेश आए, जबकि 19 में 1,15,110 जराइम की वारदातें रूनुमा हुई। इस तरह इससे जाहिर होता है कि 2019 में 4% यानी 3.8% जराइम की वारदातों में इजाफा हुआ है, जिनमें ख़वातीन के खिलाफ होने वाले इस्मत रज़ी के जैसे शर्मनाक जराइम में इजाफा देखा गया। इस्मत रज़ी के वाक़यात में जो इजाफा देखा गया, इस तरह से पिछले साल एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन ख़वातीन के खिलाफ जराइम के वाक़यात में पेश न आए हो। इन मुतासरीन में कमसिन बच्चे, नाबालिग लड़कियां, ख़वातीन शामिल हैं। पिछले साल दिशा और जैसे संगीन वारदातों में मुलविस मासूम लोगों को, लड़कियों को दी गई अजियतें अवाम के जहनों में तल्ख यादें आज भी ताज़ा है। महकमे पुलिस से मेरी दरख्वास्त है कि इन वाक़यात को संजीदगी से नोट लेते हुए खातियों को सख्त से सख्त सज़ा दे और तेज़ रफ्तार अदालतों के ज़रिए कानूनी चाराजोई की तकमील करते हुए सख्त सज़ाएँ दिलाएँ। हैदराबाद और सिकंदराबाद रच्चा गुंटा पुलिस, शहर हैदराबाद और रच्चा गुंटा पुलिस, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के हुदूद में हैदराबाद के मुफाजाती इलाके और पड़ोसी अहाते में महकमे दाखिला के मुताबिक बेतहाशा इजाफा हुआ है। बढ़ती हुई माशी सरगर्मियों के पेश नज़र शहर हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चा गुंटा पुलिस हुदूद में जराइम के वाक़यात में इजाफा और लैंड ऑर्डर के मसाइल में भी इजाफा हुआ है। अभी महासिल बजट 2020 और 21 में फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक एक साल के दौरान हैदराबाद कमिश्नर पुलिस IPC मुकदमात की तादाद में 1000 का इजाफा हुआ है। साल 18 में इन जराइम की तादाद में 14,607 थी। इस साल 2019 में बढ़कर 15,641 हो गई। ये दूसरी पिट्टी मुकदमात में अफसोसनाक हद तक इजाफा हुआ। इन मुकदमात की तादाद में 2018 में 63,584 थी, अब जबकि 19 में इसकी तादाद बढ़कर 1,15,344 हो गई है। इस तरीके से ड्रग्स और स्कूलों और कॉलेजों के तलबा नौजवानों को ड्रग्स की स्मगलिंग में बढ़ता हुआ इजाफे को संगीन सूरत हाल तशवीशनाक है, जिसकी वजह से दिन ब दिन ड्रग्स के इस्तेमाल में तेजी में इजाफा होता जा रहा है। दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में रियासत के दीगर इलाकों में गांजा और नशीली अशिया की फरोख्तगी आसानी से दस्तयाब हो रही है। पुलिस को चाहिए कि जानी तवज्जो दे के इस हालत का खात्मा करे। रियासत में 7 नए पुलिस स्टेशन, पुलिस कमिश्नर और 25 नए पुलिस सब डिवीज़न, 31 नए पुलिस सर्कल और 110 नए पुलिस स्टेशनों की तश्कील के जरिए रियासती हुकूमत ने महकमे पुलिस और नज़्म व नक्श की जानिब से एक बार एक बेहतर इक़दामात का आगाज़ किया है जिसके लिए, लेकिन साथ ही साथ जानिब तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हैदराबाद, रच्चा गुंटा, साइबराबाद कमिश्नर के हुदूद में सब डिवीज़न और सर्कल पुलिस स्टेशनों की कई सालों से ठप पड़े हुए हैं। बेहतर अंदाज से काउंसलिंग करके इसको यकीनी बनाएं और जल्द से जल्द इसका आगाज़ करें। ट्रैफिक मशाइल के मुश्किलात में जू का जू बरकरार है। शहर हैदराबाद में गाड़ियों की तादाद 50 लाख से ज़्यादा तजावीज़ हो गई है, जबकि सड़कों की तवालत में 1300 किलोमीटर है। शहर की सड़कों दौड़ने वाली गाड़ियों की तादाद बेतहाशा इजाफा हो गया है, लेकिन इन तीनों कमिश्नर के ट्रैफिक की गुंजाइश में आज तक कोई इजाफा नहीं किया गया। ट्रैफिक के अमले में कोई इजाफा नहीं किया गया, जिसके नतीजे में शहर की तंग सड़कों पर गाड़ियों की खौफनाक तादाद से हैदराबाद के शहर में ट्रैफिक के मसाइल जूं के तूं बरकरार रखे हैं। कई घंटों तक ट्रैफिक जाम हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को बाकायदा बनाने में हमेशा नाकाम नजर आती है। जिधर चाहे ट्रैफिक करीब में जाम हो जाती है, लेकिन पुलिस का अमला
चालानात में मसरूफ रहता है। इस सिलसिले में ये भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आज गरीब लोग जो फुटपाथों पे कारोबार करते हैं वो मजबूरन गुर्बत से मजबूर होकर फुटपाथ पे बैठते हैं। कोई भी गरीब खुशी से फुटपाथ पर नहीं बैठता, लेकिन पुलिस के जानिब से 3 चालानात किए जाते हैं उनको। 3 चालानात फोटोज लेके, एविडेंस लेके 3 चालानात, चौथी मरतबा उनको 2 दिन की जेल भेज दिया जा रहा है। मेरी हुकूमत से एक दरख्वास्त है, फुटपाथ पे कारोबार करने वाला बेरोजगार आदमी, गरीब आदमी फुटपाथ पे बैठ के कारोबार कर रहा है, जो जुर्म नहीं कर रहा है, उन्हें पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, अपनी भूख की प्यास मिटाने के लिए, रोजगार के जरिए रोजगार के लिए मजबूर होकर फुटपाथ पे बैठा है। लेकिन अफसोस की बात है कि उसको 2-2, 3-3 दिन की जेलों को भेज रहा है। 2 वक्त अगर जेल को गए तो उसकी शीट खोली जाती, वो रोडी शीटों की फेरिस्त में आ जाता है, जराइम का एक पेशावर आदमी बन जाता। हुकूमत से भी दरख्वास्त है, इससे पहले मैं भी इस मसले को रेज किए थे मजलिस की तरफ से, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया ये हमारे पास जो हो रहा है मैं इसको रोक दूंगा, नहीं होना चाहिए। जो कारोबार कर रहा है, जुर्म नहीं कर रहा है, उन्हें कोई कत्ल नहीं, कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं। अब जेल को जाने के बाद से यकीनन उसका ज़हन तैयार हो जाता है जराइम के दुनिया में जाने के लिए। मेरी दरख्वास्त है हुकूमत संजीदगी से इसको नोट करे, मेहनत कशों को, गरीबों को, ठेला बंडी वाले, फुटपाथ वाले, उन लोगों को जेल को मत भेजिए, जुर्माने कीजिए आप जितने करते हैं। वो जुर्म नहीं कर रहे हैं, गुनाह नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने रोजगार की खातिर फुटपाथ पे बैठ रहे हैं। उनके साथ इंसाफ करना चाहिए। हो सकता है चीफ मिनिस्टर साहब ऐलान कर चुके, हम उनके ऐलान पे खुश हुए और अभी भी यकीनी है कि चीफ मिनिस्टर साहब वो ऐलान पे कायम है। 5 बल्दिया के ट्रैफिक पुलिस के लोग ये इकदाम करके तेलंगाना हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर यही रवैया रहा तो जराइम की दुनिया में बेतहाशा महरूसीन का जेल जाने वालों में इजाफा होगा, खानदान में बदनाम हो जाता। इसका बाप जेल को गया था, इसका दादा जेल को गया था, उसकी पूरी जिंदगी बेदाग जिंदगी को ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया वाले दागदार बना रहे हैं। इससे परहेज करना चाहिए। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ इस पर नजरसानी करके वाज़ेह तौर पर ऐलान करे। आखिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें महकमे दाखिला के दीगर शोबों में फायर सर्विस है, जेल है और दीगर वेलफेयर, सैनिक वेलफेयर महकमे पुलिस के दीगर हिस्से हैं। मौसम गर्मा के दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बायस मौसम गर्मा के महीनों में दौरान आतिश दिखने के वाक़ात में इजाफा होता है। रियासत के 33 अजला में सिर्फ 116 फायर स्टेशन और 15 फायर आउटपोस्ट है। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि फायर स्टेशनों को की तादाद में और फायर स्टेशनों की तादाद में इजाफा किया जाए और महकमे फायर सर्विस में तमाम जायदादों को पूर किया जाए, ताकि लोगों को नागहानी सूरत हाल के वक्त किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मौसर तौर पर फायर ब्रिगेड की तरफ से उनकी इमदाद फराहम की जा सके। ट्रांसपोर्ट इंतजामिया के साल रवां के आखिर में रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की तादाद 126 लाख हो गई थी। अगले साल ये मोटर व्हीकल टैक्स के आमदनी में तखमीना लगाया गया, जो 14 करोड़ की नजरसानी शुदा तखमीने के मुकाबले में ज़्यादा है। महकमे शहर में मजीद आरटीसी बसों की ज़रूरत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हुकूमत से मंजूरी हासिल करके खुसूसन पुराने शहर में मिनी बसों का इंतजाम करवाया था, लेकिन अब चंद अरसे से वो मिनी बसेस को ख़त्म कर दिया गया। उसको दोबारा जारी करना चाहिए और ये आबादी के लिहाज से और गुंजान आबादी जहाँ पर बड़े बसेस नहीं जाते, पुराने शहर में मिनी बसेस का होना ज़रूरी है। मिनी बसेस का वहाँ पे फौरी इंतजाम करना हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। राशन कार्डों की अदम दस्तयाबी, आज बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और राशन कार्ड को ख़त्म हो गया। फूड सिक्योरिटी कार्ड का सिलसिला है। फूड सिक्योरिटी कार्ड को मुनासिब इंक्वायरी करके मुस्तहक लोगों को दिया जाए। आज गरीबों का बहुत बड़ा तबका है जो फूड सिक्योरिटी कार्ड से महरूम है। मैं चाहता हूं कि उनको उस कार्ड की फराहमी की जाए। 15,800 करोड़ जो इसके लिए बजट मुख्तस किया गया है, इसके लिए मैं अवामी रिज़्क़ के लिए नज़्म व नक्श के बराए अवामी रिज़्क़ के मुतालिबात ज़र में तेलंगाना रियासती कमीशन बराए अग़िया, तेलंगाना रियासती कमीशन बराए अज़ाला सारिफिन को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, इसलिए कि गरीब लोगों को
राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसका इस्तेमाल उनके लिए बेहतर होता है और इसकी कई सहूलतें उनको फराहम होती है। राशन कार्ड से गरीब लोग कई स्कीमात से इस्तेफादा कर सकते हैं। इसलिए मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि चंद बातें जो आपके ज़रिए हुकूमत के इल्म में लाया हूँ, इसके ऊपर हुकूमत तवज्जो दे और इस मुतालबात की तकमील करके अवाम में अपने एतमाद में इजाफा करे। शुक्रिया। गौरव साहब, अंजय यादव गाరు। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।